اپنے لیے مقام بنانے کے لیے، خمس بنانے کے لیے بنایا ہے. کوئی انبیاء وارث نہیں ہے. ہر ایک انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اٹھ پٹانگ کی ساری باتیں کیا قصے کہانیاں خرابات وہ سارے انبیاء کی بلن میں لگا دے. اچھا اب دوسرا حصہ میرے سوال کا یہ اچھا ہے، بسم اللہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اب عام پبلک کا ہر آدمی قرآن کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا جیسے ایک عالم سمجھ سکتا ہے. یہ تو گھٹیا ترین سوال ہے. یہ دانشوروں کی سوال ہے. یہ سیکولر دانشوروں کی سوال ہے. عام آدمی آپ نے بھی ہے کہ افسر رہے، آسان کر دیا. آپ کا ندا ہے، آپ کہیں گے ہم عام آدمی ہیں. یہ صاحب تو بڑے اونچے درجے پر ہے. یہ بھی کہہ نہیں آتا آپ لوگوں کو آج عام آدمی کہیں کہ بالکل نہیں بھئی سر سونا دین 3-4-5 چیزیں، دین کی 4-5 چیزیں، اصول عقائد ہے. اس کو بھی آپ کو سیکھنے کے لیے عام آدمی جو ہے آپ اپنی بات کرو نا. نہیں ہم ان کی نہیں آپ بات کر رہے ہیں. دوسروں کے وکیل نہیں بناؤ. آپ کو اپنا دین آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ جس دین سے آپ استدلال کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہر سطح کے پبلک ہوتی ہے تو اگر کوئی قرآن کی کوئی متشابہ آیات ہے، ہر مسلمان کو پہلے مرحلے میں اس پر واجب عینی ہے وہ قرآن کو قرآن کے معنی سمجھے. قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. نہیں اگر کہیں وہ اٹکے گا، جو خود قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ اگر تم نہیں کوئی چیز سمجھ میں آ رہی تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو، تو جائے گا تو عالم کے پاس ہی نا وہ سمجھنے کے لیے. آپ کو عالم کو پوچھنا پڑے گا نا اس کو دین آتا ہے یا نہیں. دین فتوی مجتہد نہیں ہے، دین قرآن ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے نا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے وقت پوچھ کے جاتا ہے MBBS ہے یا اسپیشلسٹ ہے. ہاں وہ ڈاکٹر سے تو آپ نہیں. عالم کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آتا ہے؟ اس کو شریف الدین کو کچھ آتا ہے یا نہیں؟ جو متشابہ آیات ہیں وہ تو بہت مختصر ہے، اس سے جانا بھی نہیں. ہم جو ہمارے پاس احکامات ہیں ہم ان کے پاس تو بھی اس پر بھی نہیں جاتے نا. ہمارا تو مسئلہ یہ ہوگا ہم نے اس سب جانا ہی نہیں ہے نا. ہم نے تو نہیں، یہ تو آپ لوگ بچے گا نہیں. آپ کینیڈا جائیں یورپ جائیں ہیں کیا سوال ہوگا. نہیں وہ خبر میں بچے گا نہیں. افسر چڑھیں گے جہاز پہ چلے، اللہ کی حکومت سے تو خبر میں نہیں سوال ہوگا. آپ لوگ بچے گا نہیں. جس نے گویائی دی ہے وہ نہیں خیر نہیں آپ لوگوں ہم کا. کس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ لوگ اپنے پیسے پہ غرور ہے، آفیسر پہ. اب تو کوئی عہدے ہی نہیں رہے گا، نہ ان کے پاس، نہ میرے پاس، نہ ان کے پاس. سب ختم ہو گیا. اب تو نہیں ہے نا، پہلے تو کما چکے ہیں نا بڑی. اب معافی مانگ لیے. اللہ نے آپ یوں کہ ہم جاتے وقت کوئی چھوڑ کے گئے یا نہیں. چلے کچھ دن میرے پاس چل کے رہے آغا صاحب، کچھ دن میرے پاس چل کے رہے. چلو شکر ہے خدا کا، آپ کسی بات پہ تو مسکرائے، ہمیں خوشی ہے آپ خوش ہیں. آغا صاحب چلے میرے پاس کچھ عرصے رہے، کچھ دن چل کے رہے میرے پاس کہاں؟ حیدرآباد. نہیں وہی آپ جو پہلا گیا ہے کان پکڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس. آپ لوگ مجھے 5 روپے میں خرید کر کے 54 میں فروخت کرتے تھے. پتہ نہیں کیسے کرتے تو یہ پتا چلے. ہاں کہ معلوم کریں نا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں غلط تھوڑی، معلوم کیا ہمیں معلوم کرنا چاہیے نا کس طرح. ایک دفعہ ہم نے ناسمجھی میں سمجھ رہے ہیں یہ لوگ دیندار ہیں، دین سمجھنا چاہتے تھے. ہاں یہ سوچتے تھے. آپ لوگ مجھے لے کے جاتے تھے اپنی بدعتوں کو میرے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھے. نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھی اور معاشرے میں آپ کی بات نہیں ہے، نہیں ہم سبھی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت جو ہم عسکری بھائی کی بات نہیں ہے. پورے ملک کی کوئٹہ سے بلتستان تک کی تنظیم آئیسو اصغریہ سب کی بات ہے. آپ سب ایک فیکٹری کا کام ہے کہ جن کے دین کیا تھے، وہ کیا چاہتے تھے، علماء کی کیوں احترام کرتے تھے، سب میں جانتا ہوں. محرم راز ہوں آپ لوگوں کا.
एक दफा आप ये बड़ी संजीदा बात है, ये बहुत संजीदा बात कर रहे हैं। हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए ना, जो बात कही है हमें इस तरह सोचना चाहिए ना, आखिर इनकी बात गलत तो नहीं होगी ना? नहीं क्या क्यों मकसद किस तरह ये बात कह रहे हैं? बता दो। कह रहे हैं कि आप असगरी भाई खुल के बता दो, दिल में जो कुछ है बता दो। नहीं वो मैं हमने बताता हूँ ना बताया ना आपको। ये कि आगे भाई किस तरह कहते हैं वो जो मुश्किल सूरत हाल आगा की जो किताबें थी या आगा जो खिताब करते थे, हम तो कोशिश करते थे उनको मुआशरे में, हमने खुद भी अपनाने की कोशिश की। और बहुत ही चीजें लेकिन- छोड़ी हैं उस वजह से। हाँ, लेकिन बहुत ही चीजें छोड़ी हैं। मसला ये था कि बाद उलमा ने फिर ये कहना शुरू किया कि आप लोगों की वजह से मिल्लत में इंतशार हो रहा है, किसको वजह से थे? मतलब खुराफात के खिलाफ ज्यादा बोलने की वजह से। वो ये कहते थे कि अगर आप समझ गए तो आप अमल कर लें, लेकिन पब्लिक में ज्यादा ना बोले, नहीं तो इंतशार पैदा हो रहा है। यानी खुराफात, आप बगैर इंतशार वाले मुआशरा चाहता है, आप दीन वाले मुआशरा नहीं चाहते हैं। आपके दीन पर अलिफ उलमा जब जाता है, मेरे पास एक आदमी आया बल्तिस्तान, नहीं मीना में है, जी। मीना में एक बल्तिस्तान का एक बड़ा ऑफिसर, उसने मुझे देख कर पकड़ के अपने खीमे में ले गया। अच्छा। तो उसमें एक और ऑफिसर थे, मुझसे पूछा, देखो मैं तकिया नहीं करता हूँ, मुंह पे जो बोलता हूँ वो बोलता हूँ, आपको इतराज है तो मुझे बता दो। ठीक है। आप लोग जैसा तकिया नहीं करो, मेरा मज़हब तकिया नहीं है, मेरा मज़हब हजरत अमीर का फरमान है, सराहत और सदाकत है। हम सच बोलता हूँ, सराहत बोलता हूँ। ठीक है। वो आके मुझसे कहा, आगा साहब आजादारी के बारे में कुछ फरमाइए। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाकिर जो जाके मिंबर पे जाके कहते हैं बिस्मिल्लाह, वो सच है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सच है, इमाम हुसैन का जो नाम है वो सच है, बाकी सब गलत है। बाकी सब गलत बोलता है, सब कहानियां हैं। इमाम हुसैन ने सुबह आशूरा से निकले, जोर आशूरा तक इमाम हुसैन का करबला में तमाम असहाब से बेकदर। ये 3 महीने बोलते 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 खत्म न होने वाली क्या बात है, कहाँ से आप लोग याद नहीं करते? मुतहरी ने कितने लिखा है, ये सारे खुराफात कहाँ से लाया? तमाम मुज्तहिदीन बेदार है इससे, इस खुराफात से। बाकर हकीम ने लिखा है, मेरे बाप ने कहा आजादारी जो है हमारे गले में फंसने वाली हड्डी है। आगे मोहसिन हकीम ने। अल्लाह अकबर, हाँ, अल्लाह अकबर। आप लोग इस्लाह नहीं चाहता है, आप फसाद फैलाना चाहता है, फसादिया आप लोग हैं। क्या नहीं छोड़ा है, जसारत छोड़ा है। पैगंबर से कहा आप तो बच गया, आपका कलिमा बच गया, मेरा हुसैन गया। शरीयत हुसैनी बनाई शरीयत मोहम्मद के मुकाबले में। क्या छोड़ा है, क्या नहीं छोड़ा आप लोगों ने आजादारी के नाम से? असगरिया से हमारे उसूल आजादारी की या अली मदद पर टूटे हैं। किसी ने उनसे पूछा कि तुम लोग शरफुद्दीन की पैरवी करते हो, तो वो हिंदी में होते हैं, नहीं हम तो ऐसा नहीं है। सारे पैसा लेने की मीटिंग अलग करते थे, मुझे कन्वेंशन की मौजूआत मुझसे लेते थे, पता है। दीन है, ये मुल्क है, अपने यहाँ है, यहाँ रहना है, न रहे तो इंसान को कब्र में जाना है। दुरुस्त। किस बुनियाद पे मेरे किताबों पे पाबंदी लगाई? कौन सी दी है? किताबों पे नहीं है, हर किस्म की गंदगी, किस्सा, कहानी। एक मसला लो, इमाम हुसैन के मसले को, कौन से मसले हैं जो मैंने कहा है और किसी ने नहीं कहा हो, बगैर सनद कहा हो?
आगा आप जो जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो जरूरी तो नहीं है कि अभी हो जाए। हाँ जो आप चाहते हैं, हाँ। जो करना और कहना और चाहते हैं कि उम्मत में इस्लाह पजीरी हो, तो वो जरूरी तो नहीं है कि अभी ही हो जाए, फौरन हो जाए। आपने गलत बोला है जी, आपने गलत बोला। मेरी क्या हैसियत कि मैं अभी हो जाए? आपने कहा मुझे बोलो ही नहीं, नहीं आप आपने कहा लिखो ही नहीं। वो गलत है, वो गलत है। हाँ, नहीं, तो फिर क्या है? वो आपका बोलना हक है। नहीं, दुकान पे जाके किसने बंद किया मेरे किताबों को? नहीं, वो गलत है। हाँ, मीटिंग के किसने की है? अल्लाह पैगंबर से फरमाते लस्ता अलैकुम लस्ता भी वकील, आप हमारा वकील नहीं है, तो मैं कैसे वकील बनूंगा दीन का? मैंने करके दिखाना है। बेवकूफ है, मेरी क्या हैसियत है, मेरी कौन सी इल्म है? करके दिखाना चाहता हूँ। कौन सी जवाब डाला? इतने साल हैदराबाद में आके आपको कौन सी बुराई बात की मैंने? आप लोग मुनाफिकत कर रहे थे ना, हम सराहत कहते थे, हम समझते थे आप लोग मुसलमान हैं। आगे की बातें जो हैं इस काबिल हैं कि हम थोड़ा सा रिव्यू करें। आपने जो बहरहाल कहीं कोई ना कोई अशरफ इधर आ गया, इधर जी कराची में यहाँ इनके पास एक आदमी को लाया, आगा के पास आया था अशरफ। एक आदमी को लाया, मोटा पता नहीं क्या है। उसने एक और खतरनाक को लाया यहाँ, बेनमाजी। मैं नमाज ही पढ़ सकता हूँ, पाऊ यूं करके, इधर दर्द है। इधर बैठ के 2 दिन मुसलसल कह दिया उफ उफ उफ, उसको उफो का गुफ्तगू 3 दिन मुसलसल कहेंगे तो मैं क्या समझूं? फिर कहा हमें मजलिस पढ़ो। मैंने मजलिस बंद किया है, मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ हम तीनों के लिए पढ़ रहा हूं। हमने कहा चलो, तीसरा आदमी, चौथा आदमी नहीं आएगा। हाँ, 3 आदमी के लिए पहले दिन एक आदमी लाया, दूसरे दिन वो गया, तीसरा चौथा आदमी लाया। तीसरे दिन मैंने कहा खत्म करो। हाँ, मेरे नाम उसको गुफ्तगू में आया फलान, आपके नाम क्या गाली दिया आपको? ये क्या है ना, आपने धोखा दिया मेरे। आदमी भर के उठ पतंग के, शहबाज कलंदर के लोग, पुलिस फौजी सब मेरे पास इधर लाया। किस पे एतमाद करे? सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने खैर आफियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी है वो बता दो मेरे पास। असगरिया का एक लड़का जो है 5-6 साल के बाद हरम में देखा, वो उधर नमाज पढ़े थे, मैं खड़ा थे, देख के हाथ भी यूं नहीं किया। हाँ, उठ के आना तो छोड़ो, बाहर गया तो इत्तेफाक से वो हमारे बिल्डिंग में थे, उसी गाड़ी में सवार हुआ, गाड़ी में आ गया, उधर का सीट पे गया, उतरा, पूछा नहीं मुझे। फिर 3 साल के बाद वो एक आदमी को लेके इधर आया मेरे पास। अभी आप क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं भाई, घर में महबूस हूं।
कहाँ जाऊं? बाहर आए ना, अब दरस दे देना, अब यहाँ आए भाई, किसको दरस दे दूं? आपको दरस दे दूं? आपने 4-5 साल के बाद देख के सलाम तक भी नहीं किया मुझे, चुप हो गए। हुसैन शाह मेरी किताबें मुसवदा जो लिखता था ना, वो मैं देख सकता हूं। हाँ, मैं देख सकता हूं। मुझे देंगे, मैं पढ़ के लाऊं। पढ़ के लेके गया, लाया नहीं, उससे उसने अपना किताब बनाया। या अल्लाह। हाँ, अपना किताब बनाया सिंधी में। मैंने कुछ कहा नहीं, मालूमात है, जाए नहीं दो। उस दिन से अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। और मनशा किसी के सिंधी मौलाना के पास मेरा 20,000 थे, उससे उसने 10,000